Hey guys, Artam this side और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन which is question number 49 group anagrams. So you're given an array of strings str s group the you have to group the anagrams together. You can return the answer in any order. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. अब समझ में तो आया नहीं होगा, so let's first understand the question. So let's understand the question. In this question, group anagrams. First of all, you have to understand what is a anagram. Anagram होता क्या? Anagram is a word or a phrase that can be formed by rearranging the letter of different word or phrase, typically using all the original letters. For example, ये बकवास नहीं देखते हैं, example समझते हैं. मान लीजिए eat है, right? Eat है, eat एक word है, right? Eat एक word है. And if you can form this word by arranging the letters of any other word, for example 8 tha ate, so you can form eat, right? You can form eat by arranging the letters of 8, but these are two different words initially. But I can form eat, e-a-t, right? Arranging this, putting this e here, you can form eat from this 8. So both of these are anagrams, right? So we can group them together. So this is an anagram कि आप एक word के letters को rearrange कर, characters को rearrange करके कोई और word बना पा रहे हैं. So both of the words will be called as anagrams, and if there are multiple words in this question, you have to group them together. For example, let's look at the example number 1. In this example number 1, you are given a string array, which is strs, and you have to return a string of string array, right? A string of string array. Sorry, a vector of string, right? This is a vector and this is another vector of strings, right? So vector of string. So what will you return in that vector, in the small vectors? आपको return करना है group of anagrams. You have to group the anagrams together and you have to put them in a string, vector of string, and you have to return them, right? So for example, let's look at this eat. Can we form eat using this? Yes, we can form if we arrange it like EAT, right? EAT. So these both can be anagrams. So I found one anagram of eat, right? One anagram of eat. So this is the anagram, right? Now look at this. Can we form eat using this? No, obviously not, because it doesn't have E and it has an extra letter N. We do not require this. So we cannot form anagram of so these two are not anagrams. These two are not anagrams, right? These two are not anagrams. Now look at this 8, right? I took the example right now. So we can obviously form eat from this, right? By rearranging the letters and we do not have to additionally add a character or remove a character. We just have to rearrange the character to form the word. So we can form eat using 8. So it is also an anagram. So we found 2 anagrams of eat, right? Now look at this next one. Nat, obviously not. It has an bat, obviously not. It has a b, right? We cannot arrange it. So these two are not anagrams. So we found 2 anagrams of eat, right? Which are those? Eat, anagram with t, anagram with 8, right? So these 3 can be grouped together. Because these 3 are anagrams of each other. For example, I can also form t using eat. How? I can put the characters of eat like this, and I can form t. Similarly, I can form 8 from eat, right? By just rearranging. तो हम rearrange करके अगर same word बना पा रहे हैं, then we can say that those words are anagram. And we have found 2 anagrams of eat. One is t, another one is 8. So we group them together, and we returned a vector of string in the answer vector. बट और भी एनाग्राम्स हमें सर्च करने, खाली एक तो नहीं बोला है. इन्होंने बोला है कि सारे एनाग्राम्स के ग्रुप हमें रिटर्न कर दो. अगर कोई ग्रुप बन नहीं रहा है, कोई एनाग्राम बन नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल बैट का कोई भी एनाग्राम आपको यहाँ नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू रिटर्न बैट एज इट इज. what you'll do, you will just push it into the vector of string and you will return the vector of string containing bat only, right? Now look at this tan. We can form a tan using nat. So these two are anagrams. So we'll group them together and push them into the vector of string and return it, right? So this is also a group, right? And now all the strings given in the original vector of string are covered, either grouped or not grouped. So bat is covered here, second, third, fourth, fifth, sixth, right? All six strings have been covered, either grouped or not grouped. If we found a anagram, we would group them together. If we do not found a anagram, we won't group, right? So we have to return a vector of string, right? Now let's look at the other example. Empty string, obviously no anagram, so empty vector of string. A only single string, right? Only single string, तो as it is written कर देंगे उसे, right? अब एक बार अप्रोच देखते हैं इसकी, फटाफट एक बार अप्रोच देखते हैं. अप्रोच व्हाट विल डू इज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं इसे जो भी दो एनाग्राम्स है उनमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सेम टाइप और सेम नंबर लेटर है. फॉर एग्जांपल ईट में ए भी 1 है, ई भी 1 है, टी भी 1 है. सिमिलरली इन टी ऑल्सो देयर इज 1 ए
one E and one T. Similarly, in 8 also, there is one A, one E and one T. तो आपको इतना तो लॉजिक पता चल गया कि एनाग्राम कब होंगे, जब उनकी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, राइट? उनके अंदर जो कैरेक्टर्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ना एक ज्यादा ना एक कम, सेम बिल्कुल. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज एनाग्राम. If somehow we, what we'll do, if somehow I just calculated, मैंने क्या करा, इन सेम फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स को एक वेक्टर में स्टोर कर लिया, राइट? सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर AET111 है, सिमिलरली AET111, AET111. तो इनकी काउंट, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके व्हाट आई विल डू इज आई विल पुश देम इनटू वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग. And I can say that I have grouped a group of 3 strings which are anagram to each other, right? So what we'll do is we'll put these three strings which are anagram into the vector of strings, right? And we'll push this vector into the answer vector, right? So this would be our approach. But how would we count the frequency? That is the question. So there are two ways to count the frequency of characters in a string. What are the two ways? First way would be map, right? You can take an ordered map, right? An ordered map. But before that, if I just insert the characters frequency, right? If I just insert the character frequency, how would I approach again? How would I check that both of these characters have the same characters frequency, right? मतलब 8 में एक A है, एक E है, एक T है, तो T में भी सेम है और 8 में भी सेम केस है. So our approach भी, so अब approach समझिए. Unordered map यूज करेंगे, but how? what we'll do is हम क्या करेंगे, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, राइट? इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको सॉर्ट कर लेते हैं, राइट? उनको सॉर्ट कर लेते हैं. सो दिस वुड रिटर्न अस AET, राइट? जस्ट अ सेकेंड. this would return us AET, right? And this would also return us AET after sorting this string. Then after sorting this string we would get AET again. So what we'll do, अब हम ऐसे कुछ कर सकते हैं. आपको पता होगा मैप में क्या होता है, की होती है और उसके आगे कुछ वैल्यू होती है उस की से करस्पॉन्डिंग, और जहाँ जहाँ वो की होती है वहाँ वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, राइट? तो की यूनिक होती है एंड वैल्यू कैन बी रिपीटेड, राइट? सो हम क्या करेंगे व्हाट विल डू इज हम स्ट्रिंग उठाएंगे, सॉर्ट करेंगे, इसे सॉर्ट कर लिया, then we'll put it as the key, right? As the key into the map. And is sorted string में what we'll do is we'll check whether this matches this key, right? इसको भी हर what we'll do is हर string को sort करेंगे, right? सबसे पहले हमने ईट डाल दिया, उसके बाद क्या करा हमने, ईट का हमने string डाल दिया, right? तो हम क्या लेंगे we'll actually take an ordered map of string comma vector of string, right? तो हम क्या करेंगे, उस की से रिलेटेड जितने भी उसकी इक्विवेलेंट जितने भी आपके पास स्ट्रिंग होंगे, यू विल जस्ट पुट देम इनटू दिस वेक्टर. इसका मतलब क्या है, हम हर एक हम की बनाने के बाद हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे एंड विल कंपेयर इट विद की. अगर वो की के इक्वल है, फॉर एग्जांपल हमने की बनाई EAT की सॉर्ट करके, दैट इज AET, और हम सॉर्ट क्यों करें, हमने बता दिया कि अब एनाग्राम्स को सॉर्ट करेंगे तो दैट वुड रिटर्न अस सेम थिंग, राइट? दैट वुड रिटर्न अस सेम वैल्यू. तो की सब की इक्वल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमने इसको सॉर्ट किया AET, राइट? और फिर हमने इसको पुश कर दिया वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, राइट? ये वेक्टर हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हो गया, राइट? एंड ये पुशिंग दिस. फिर हम T पे आए, राइट? T पे आए, विल सॉर्ट T को सॉर्ट करा, चेक करा कि सॉर्टेड वैल्यू T की इसके बराबर है, सॉर्ट होके क्या आएगा, सॉरी इसके बराबर नहीं, इसके बराबर, की के बराबर, राइट? तो T को सॉर्ट करके AET मिलेगा, हाँ भाई इक्वल है. अगर इक्वल है तो T को, सॉर्टेड वैल्यू को नहीं, T को आप स्ट्रिंग को वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में पुश कर दो यहाँ, राइट? सिमिलरली आप आएंगे क्या, अगले स्ट्रिंग पे आएंगे, इस स्ट्रिंग एरे में, दैट इज 10. अब इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, तो दैट वुड गिव अस ANT, राइट? तो ANT एक नई की हो गई जिसके करस्पॉन्डिंग नया एलिमेंट मिला हमें 10, विल पुश इट राइट हियर. देन व्हाट विल डू इज हम 8 पे आ गए, अगले स्ट्रिंग पे आ गए, इसको सॉर्ट किया, दैट वुड गिव अस AET अगेन एंड विल चेक वेदर अ की, करस्पॉन्डिंग की, इसके इक्विवेलेंट कोई की एग्जिस्ट करती है सेम ऐसी, हाँ करती है. अगर करती है तो उसी वेक्टर में ये पुश कर दो जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेक्टर है ना, हमने लिया ना स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग की है उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है. सो विल पुश 8, राइट? विल पुश ATE इनटू द स्ट्रिंग, राइट? इनटू द स्ट्रिंग. और ये मैप है पूरा, राइट? ये मैप है, लेट मी जस्ट मेक इट मोर विजिबल, मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट? देन व्हाट विल डू इज NAT पे आए, NAT को फिर से सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद एंड मिला. अब इस सॉर्टेड वैल्यू को कंपेयर किया कि कोई की एग्जिस्ट करती है मैप में, ऐसी सेम करती है तो उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है उसमें वो वैल्यू डाल दो, उस स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दो, दैट इज NAT. विल पुश NAT इन दिस वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस एंड वैल्यू, राइट? फिर हम क्या करेंगे, we'll go to next, just a second, we will go to next, which is bat को सॉर्ट करा ABT, उसके करस्पॉन्डिंग कोई की एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो उसके
वैल्यू उसके वैल्यू वेक्टर में डाल दो, अदरवाइज उस की को बनाओ, उस की को बनाओ और उसके करस्पॉन्डिंग वो वाला वेक्टर में पुश कर दो, वो वाली वैल्यू वाला स्ट्रिंग वेक्टर में पुश कर दो बिना सॉर्टेड, राइट। बिना सॉर्ट करके हम देखेंगे कि की एक्सिस्ट करती नहीं। सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनाग्राम का सॉर्टेड जो वैल्यू है दैट वुड रिटर्न अस इक्वल वैल्यू, राइट। एनाग्राम्स मान लीजिए एनाग्राम, ये एनाग्राम, ये एनाग्राम, तीनों को सॉर्ट करके हमें क्या मिलेगा, एटी। सो वी हैव मेड दिस एटी एज की, और उसके करस्पॉन्डिंग हर स्ट्रिंग को सॉर्ट करके देख रहे हैं। जैसे ही ये की मैच होगी सॉर्टेड वैल्यू से, तो हम उस वैल्यू सॉर्टेड वैल्यू को नहीं, उस एक्चुअल वैल्यू को पुश कर देंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, राइट। दैट्स व्हाट विल डू, राइट, दैट्स व्हाट विल डू। next what we'll do is this is our approach, right, this is our approach। अब हमने पूरा इटरेट कर दिया है। so what we'll do is हम ये पूरे मैप का ये वाला वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर रिटर्न कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी ऑर्डर में, राइट, किसी भी ऑर्डर में आपको रिटर्न करना है और यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर। सो हमें रिटर्न की वैल्यू चिंता नहीं किस ऑर्डर में करना है, विल जस्ट रिटर्न दिस वैल्यूज वेक्टर्स, राइट। वैल्यू वाले जो वेक्टर है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग विल रिटर्न दैट। जो फटाफट कोड समझते हैं, कोड में हमें रिटर्न करने फंक्शन था वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करना है, एंड यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वेक्टर, राइट। तो आपने मैंने टेम्प बना लिया वेक्टर। व्हाट विल डू इज अनऑर्डर्ड मैप बना के स्ट्रिंग और उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे, राइट। हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे। अब सॉर्ट करने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग ऑफ str ऑफ i को, यानी जो भी फर्स्ट वैल्यू है स्ट्रिंग में, उसको ही सॉर्ट कर देता, तो एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाती एंड विल पुशिंग इट, तो हमारी सॉर्टेड वैल्यू भी पुश हो जाती। विच मीन्स अगर 80e था तो उसको सॉर्ट करके 80 मिला और हम 80 को पुश कर देंगे। 80 तो 80 से सॉर्टेड वैल्यू तो की चेक करनी है ना कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सो हम क्या करेंगे, टेम्प स्ट्रिंग बना लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेम्प में हमने स्टोर करी एंड देन विल सॉर्ट टेम्प, और इस टेम्प सॉर्टेड टेम्प को विच वुड रिटर्न 80 फॉर 80e, इस सॉर्टेड वैल्यू को हम इस सॉर्टेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टेम्प को यहाँ डाल देंगे, सॉर्टेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर होगा, ऑब्वियसली दिस वुड गिव अस अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसमें पुश बैक कर देंगे ये एक्चुअल वैल्यू विच इज अनसॉर्टेड, राइट। सो दिस इज आवर बेसिक अप्रोच। फिर हम क्या करेंगे, इन सब वेक्टर मैप बन जाएगा, उसके यहाँ पर कीज होंगी, राइट। की 1 की 2, हर की के करस्पॉन्डिंग ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा, राइट। ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, राइट। इसमें स्ट्रिंग है वैल्यूज, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग है, विल रिटर्न दिस वेक्टर। अब एक वेक्टर स्ट्रिंग बना लिया जो कि एक्चुअल वैल्यू, जो कि एक्चुअल डेटा टाइप है, हमें रिटर्न करना है। व्हाट विल पुश इन इट, एक वेक्टर में एक और वेक्टर पुश कर दिया, अरे बड़े वेक्टर में हम छोटे छोटे वेक्टर पुश कर देंगे, और छोटे वेक्टर कहाँ से मिलेंगे, इस मैप के करस्पॉन्डिंग, हर की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगी, दैट इज व्हाट वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करेंगे, एक्स डॉट सेकंड से, एक्स क्या हर एक एलिमेंट पे जाएगा और एक्स डॉट सेकंड हमें क्या रिटर्न करेगा, एक्स डॉट सेकंड वुड रिटर्न द वैल्यू विच इज वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमने आंसर में पुश कर दिया, which is vector of string, which would give us our answer and will return that answer. So this is our approach, this is a basic approach, right? अब let's first understand the complexity, right? Let's first understand the complexity, what the complexity is. So see this this would let's say हमारा string जो array है उसका साइज है, right? और अंदर वाला string है उसका साइज है, यानी ये जो पूरी array है, right? ये जो पूरी array है, wait just a second, ये जो पूरी array strs उसका साइज n है, which means there are n string values inside it, और हर एक string का साइज हम वेरिएबल साइज m मान ले रहे हैं, करेक्ट। सो दिस इज दैट्स व्हाट m and m are। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पुश बैक करने की तो बिग ऑफ 1 है, राइट, बिग ऑफ 1 है, बट हम सॉर्ट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n, राइट। और कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करें, विल सॉर्टिंग m, राइट, विल सॉर्टिंग m वैल्यूज, राइट। हर एक टेम्प को सॉर्ट कर रहे हैं ना, टेम्प क्या है, टेम्प अंदर वाला स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग एरे में एक सिंगल स्ट्रिंग है उसका साइज m है, तो हम m वैल्यू को सॉर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे n टाइम्स यू आर सॉर्टिंग m वैल्यूज, राइट, n टाइम्स लूप चल रहा है इन विच यू आर सॉर्टिंग m वैल्यूज। तो ये सॉर्ट एक्चुअली n log n नहीं रिटर्न करेगा, टेक करेगा टाइम। व्हाट दिस विल टेक इज, अगर m साइज का स्ट्रिंग है आपका तो सॉर्ट करने में कितना लगेगा, m log m, राइट। और m log m हर एक आइटरेशन में लगेगा, एंड देयर आर टोटल n आइटरेशंस। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस लूप की, इस पूरे फॉर लूप की क्या हो जाएगी, n इंटू m इंटू लॉग m, विच इज ह्यूज, राइट। n स्क्वायर भी एक बार को बात थी, बट विच इज वेरी ह्यूज, राइट। अगर मैं इसका साइज ही बढ़ा दूँ, दैट इक्विवेलेंट कर दूँ n के, राइट, तो दिस वुड गिव अस n स्क्वायर लॉग n, विच इज वेरी ह्यूज, राइट। और इसमें तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी नहीं, हम मैप को एडिट करें विच इज ऑफ n, राइट, विच इज ऑफ n। तो यहाँ पर इस वाले लूप की और इस वाले लूप की दोनों कौन सी बड़ी है, वाले लूप की बड़ी है, तो विल टेक दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब कैन वी, अब बहुत ह्यूज आ गया, राइट, मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका आंसर, बट दिस इज ह्यूज। कैन वी ऑप्टिमाइज दिस कोड फर्दर, राइट, दिस अप्रोच। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कहाँ लग रही है एक्स्ट्रा, अगर ये किसी तरह m ही हो जाता, O of m हो जाता, सॉर्ट में m log m की जगह O of m हो जाए किसी तरह से, और या फिर हमें सॉर्टिंग हटानी पड़े,
सॉर्टिंग हटा के हम किसी तरह से ओ ऑफ एम कर दे, सॉर्टिंग तो एम लॉग एम ले रही है ना इन आइटरेशंस के लिए, तो हमारी अगर मैं इसे हटा दूँ सॉर्टिंग को, और व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम is re-establishing a new logic which would take O of m, right? O of m time complexity inside this loop. So my overall time complexity would be n cross m, right? Plus O of n for this. So overall तो यही आ जाएगी ना n cross m, which is less than the previous time complexity. So what we'll do is optimize करने के लिए अब आप logic देखिए, हम सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मैप में की जो है इक्विवेलेंट मिले हर एनाग्राम की, राइट? सॉर्ट इसलिए तो कर रहे हैं ना, सॉर्ट इसकी भी की ATE मिले, इसकी भी की ATE मिले, AET मिले, तो इन एनाग्राम्स की सबकी की इक्वल होती है, तो उस करस्पॉन्डिंग इक्वल की के सॉर्टेड वैल्यू जो इक्वल होती है ना, की कह रहा हूँ इक्वल, सॉर्टेड वैल्यू इक्वल होती है हर एनाग्राम की। सो उस इक्वल वैल्यू को हमने की बना के उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनाग्राम है दैट वी हैव इंसर्टेड इन अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वो हमारा लॉजिक था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सॉर्टिंग। व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम सॉर्टिंग हटा दें, सॉर्टिंग बेसिकली की जनरेशन के लिए यूज हो रही है ना, की को बनाने के लिए यूज हो रही है, राइट? और उस करस्पॉन्डिंग की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी हर स्ट्रिंग को हम सॉर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी आर चेकिंग उस की के करस्पॉन्डिंग उस वेक्टर में पुश कर दो, राइट? तो अगर हम की किसी और तरीके से जनरेट कर लें, दैट वुड मिनिमाइज, दैट वुड नॉट यूज सॉर्ट, तो हमारा लॉजिक और मिनिमाइज हो जाएगा। अब एक लॉजिक देखते हैं, व्हाट विल डू इज हम की बनाने की जगह, हम सॉर्ट करने की जगह की बनाने के लिए हम एक और लॉजिक यूज करेंगे। अब आप व्हाट यू कैन डू इज मैप में यू काउंट फ्रीक्वेंसी, राइट? यू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? वो अगर मैं क्या करूं, हर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक की खुद से जनरेट कर दूं किसी लॉजिक से, तो मुझे सॉर्ट यूज नहीं करना पड़ेगा, और लॉजिक मेरा सेम ही रहेगा कि उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी मैप में वैल्यू जो भी वेक्टर है उसमें पुश कर दो उस वेक्टर को, लॉजिक मेरा सेम रहेगा, बट मैं की एनाग्राम्स की सेम की जनरेट कर सकूं इसी तरह, तो मजा आ जाएगा बिना सॉर्टिंग के। तो अब देखते हैं उसको कैसे करूंगा। हमने क्या करा, एनाग्राम्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो सॉर्ट करके इक्वल वैल्यू आएगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, हर एक कैरेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी एनाग्राम्स में, यहाँ भी एक ए है, एक ई है, एक टी है, राइट? सिमिलरली यहाँ भी एक ए है, एक ई है, 1 टी, राइट? तो इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है कैरेक्टर्स की एनाग्राम्स में, दैट्स व्हाई दीस थ्री आर एनाग्राम्स। अगर मैं किसी तरह से फ्रीक्वेंसी काउंट कर दूं एंड आई एम कन्वर्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी इनटू अ की, तो इस की के करस्पॉन्डिंग ये सब वैल्यू इक्वल देंगे हर बार फ्रीक्वेंसी काउंट करके, और इस की को मैं स्टोर कर दूं मैप में, देन आई विल पुश इट इनटू द आंसर वेक्टर, राइट? मैप के करस्पॉन्डिंग की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वेक्टर है उसको पुश कर दूंगा। सो अब लॉजिक देखते हैं हाउ वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द की। हमने क्या करा, सॉर्ट हटा दिया, देखिए यहाँ सॉर्ट था, सॉर्ट हटा दिया, सॉर्ट हटाने के बाद व्हाट वी हैव डन, सॉर्ट हटाने के बाद हमने क्या करा, हमने करा ये हमारा यहाँ से ना, एक सेकंड, ऑप्टिमाइज कोड, हाँ, तो हमने वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फंक्शन, राइट? ये तो गिवन था, वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फंक्शन क्रिएट की दैट वुड क्रिएट अ की फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी वैल्यू होगी उसमें पुश कर देगा वेक्टर को, उस स्ट्रिंग को, राइट? सो देखते हैं क्रिएट की कैसे कर रहे हैं। क्रिएट की क्या करा, एक नॉर्मल स्टेंसिल ले लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, और हमने काउंट एरे बना ली, राइट? काउंट एरे में कैरेक्टर्स को काउंट करना है, तो काउंट एरे का साइज कितना होगा, 26 लेंथ होगी, विच मीन 0 इंडेक्स से 25 इंडेक्स तक, राइट? 0 इंडेक्स से 25 इंडेक्स तक, 0 1 2 3, एंड व्हाट दिस विल डू इज हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे काउंट बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, काउंट में x माइनस, x क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यू, मान लीजिए ATE था, राइट? ATE की मैं करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज काउंट कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की। सो A की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, 0th इंडेक्स पे, 0th पे A होगा, Z कहाँ होगा, 25th इंडेक्स पे, ये साइज है, 25th इंडेक्स पे क्या होगा Z, और 0th पे क्या होगा A, तभी 26 कैरेक्टर्स हैं। व्हाट विल डू इज काउंट x माइनस A, विच मीन्स A अगर फर्स्ट आया, मैं स्ट्रिंग को एडिट कर रहा हूँ तो अभी मैं A पे हूँ, और A माइनस A करा तो कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर वुड रिटर्न अस इंटीजर, तो ये इसकी क्या वैल्यू होगी, 0। तो ये कह रहा है कि काउंट 0 पे एक वैल्यू बढ़ा दो, विच मीन्स एक A मिल गया हमें। देन व्हाट वी आर डूइंग, आगे जा रहा हूँ, आगे जाने के बाद T मिला, देन व्हाट वी आर डूइंग T माइनस A करके, और T के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उस पे तुम एक बढ़ा दो, मान लीजिए 49 यहाँ पर बढ़ा दिया, राइट? और इनिशियलाइज मैंने कर रखा है काउंटर को 0 से, तो करस्पॉन्डिंग बाकी सारी वैल्यू 0 रहेंगी, राइट? तो हमें AT के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर मिल जाएगा, मान लीजिए कोई करस्पॉन्डिंग 26 लेंथ का वेक्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देखते हैं। हमने क्या करा, उस की में जो एम्प्टी स्ट्रिंग था, हमने उस काउंट वेक्टर जो भी जनरेट हुआ यहाँ से, काउंट वेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट करके उसको आइटरेट करा, और हर एक कैरेक्टर जैसे आइटरेट करा, मान लीजिए यहाँ पर आया, जो भी यहाँ पर वैल्यू से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके की में जोड़ दिया, विच मीन्स अगर इसमें यहाँ पर 14 पे 1 है बस, एंड यहाँ पर 25 पे 1 है, सो व्हाट विल डू इज हमें स्ट्रिंग क्या मिल जाएगा, हमें की क्या मिल जाएगी, 1 0 0 1 0 1 1 0, ऐसे करस्पॉन्डिंग की मिल जाएगी,
और 1 या फिर 0 के अलावा कोई भी नंबर वहीं पर होगा जहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करी हो कैरेक्टर की, मान लीजिए ए यहाँ पर था, बी सी डी, डी यहाँ पर मिल गया हमें स्ट्रिंग में, तो डी यहाँ काउंट हो गया। अगर डी 2 मिलते तो 2 काउंट हो जाता, 10 मिलते ए तो 10 ए काउंट हो जाते, राइट, 10 ए काउंट हो जाते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमने क्या करा इस स्ट्रिंग से हमने टू स्ट्रिंग, बार बार टू स्ट्रिंग बना रहे हैं, और व्हाट वी आर डूइंग इज एक बड़ा सा काउंट एरे की फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो वो स्ट्रिंग जो आएगा वो हमारा 26 लेंथ का होगा। अभी से भूल जाइए हमने ये क्यों करा है, अभी आप इतने पे फोकस करिए, राइट। तो 26 लेंथ का होगा, 26 लेंथ का मतलब कि एक हमें की मिल गई विच इज ऑफ लेंथ 26, राइट। अब फ्रीक्वेंसी ए टी ई की भी सेम है, राइट, कैरेक्टर्स की, और ए ई टी की भी सेम है, और ई ए टी की भी सेम है। सो दिस ऑल थ्री वुड गिव अस सेम काउंट एरे, क्योंकि कैरेक्टर की तो फ्रीक्वेंसी वो सेम ही है ना, एक इधर एक ई एंड 1 टी, राइट। सो दिस ऑल थ्री वुड गिव अस सेम काउंट एरे, और उस काउंट एरे को मैंने क्या करा, स्ट्रिंग बना दिया। मुझे तीनों की सेम मिलेगी विच इज ऑफ 26 लेंथ, कुछ 10010 ऐसे करके मिलेगी 26 लेंथ की। क्यों 26 लेंथ क्यों कह रहा हूँ, 3 कैरेक्टर है 26 लेंथ की क्यों, काउंट एरे में इनिशियलाइज तो 0 को भी किया है ना, पूरी एरे को 26 के 26 को इनिशियलाइज करा 0 से, और वैल्यू वहीं बढ़ा रहा हूँ जो कैरेक्टर मिल रहा है। सो दिस वुड गिव अस अ 26 लेंथ की फॉर ऑल 3 एनाग्राम, और हर एक एनाग्राम की मैं कह सकता हूँ कि की सेम होगी। तो यहाँ से की जनरेट कर दूं, मैं रिटर्न की कर दूं, रिटर्न की कर दिया, रिटर्न की करने के बाद वही सेम लॉजिक उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग था उसको पुश कर दूं वेक्टर में, और फिर आइटरेट करके वेक्टर को आंसर पुश कर दूं हर एक उसके की के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर वैल्यू वेक्टर आएगा मैप में, राइट। बट एक एक्सेप्शन केस हो सकता है क्या, एक एक्सेप्शन केस हो सकता है, लेट्स सी एक एक्सेप्शन केस देखते हैं। ये रहा प्यारा सा केस आपका, जब तक आप की जनरेशन में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करें, मान लीजिए एक 10 थे, उसके बाद आपने जोड़ना है क्या 10, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और एम्प्टी स्ट्रिंग में जोड़ दिया विच इज 10 जोड़ दिया, उसके साथ ये प्लस कर दिया, फिर अगली वैल्यू मान लीजिए बी 1 था तो 1, फिर डॉलर जोड़ेंगे आप, फिर सी की फ्रीक्वेंसी 0 थी मान लीजिए, फिर डॉलर जोड़ेंगे आप, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद, या पहले आप डॉलर जोड़ेंगे टू सेपरेट दोस फ्रीक्वेंसीज, राइट। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस, लुक एट दिस एग्जाम्पल, लुक एट दिस केस। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है बी, और यहाँ पर कितने डी है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बी है, तो एक बी है और 10 डी है, राइट। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास 10 क्या है बी, और एक सी है। सो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर मैं डॉलर यूज नहीं करूंगा तो देखते हैं हमारी वो क्या बनेगी, की क्या बनेगी, राइट, की क्या बनेगी। तो लेट्स सी व्हाट आर की वुड लुक लाइक। सो ये फर्स्ट था, फर्स्ट स्ट्रिंग एक बी था तो बी की जगह 1 कर दिया, 10 डी मिले तो डी की जगह 10 कर दिया, राइट, और बाकी सब 0 और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग में 10 बी मिले, सो बी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इंडेक्स होगा उस पे 10 वैल्यू कर दिया अपडेट करके, सो 10 फ्रीक्वेंसी हो गई बी की। दिस टेल्स अस दैट सी एक है तो सी की जगह हमने 1 कर दिया। अब लुक एट दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 10। अब आपको इसलिए पता चल रहा है बिकॉज एक एरे की फॉर्म में मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है। बट व्हाट इफ मैं पूरी ये जो 26 लेंथ की काउंट एरे बनेगी स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग की, उनको एक साथ लिख दूं विदाउट सेपरेटिंग एवरी फ्रीक्वेंसी, राइट, विदाउट सेपरेटिंग एवरी, मतलब 0 और 1 को सेपरेट नहीं करा किसी भी सेपरेटर के थ्रू, जो मैंने लगाया डॉलर लगाया ना। दो केस क्या बनेगा, देखते केस क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिए दोनों की ऐसी दिखेंगी। अब है तो स्ट्रिंग, अब आपको ही तो पता है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में 10 डी है, यानी एक बी एक 0 सी 0 ए 0 1 बी 0 सी एंड 10 डी, ये रहा 10 डी, राइट, 10 डी। दूसरे केस में 0 ए है 10 बी है 10 बी है 1 सी है और रेस्ट 0 और कोई कैरेक्टर नहीं है, तो दोनों की सेम बन गई, इन दोनों की सेम बन गई, बट दीज आर नॉट एनाग्राम्स, दीज आर नॉट एनाग्राम्स। अब देख लिए ना, देख लीजिए यहाँ पर 10 डी, यहाँ पर 10 डी दिख रहे हैं आपको, तो एनाग्राम्स तो है नहीं। क्यों, आप इसके कैरेक्टर चेंज करके या एक्सचेंज करके इधर उधर पोजीशन चेंज करके ये नहीं बना सकते, नॉट वाइस वर्सा इज आल्सो नॉट ट्रू। तो इन दोनों की सेम बन रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेपरेटर। हर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जोड़ने से पहले की में वी आर यूजिंग सेपरेटर, कि भाई ए की वैल्यू फ्रीक्वेंसी सेपरेटर, बी की फ्रीक्वेंसी सेपरेटर, सी की फ्रीक्वेंसी एंड टिल सेट, राइट, टिल सेट। तो आप कुछ भी सेपरेटर हैश एट द रेट व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर अंडरस्कोर स्पेस व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक इट, राइट। तो अब ये हर बार यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा, कैसे अगर मैं यहाँ 0 1 के बाद यहाँ पर डॉलर लगा दूं, और उसके बाद और 10 के बाद भी डॉलर लगा दूं, और यहाँ पर 10 के बाद डॉलर लगा दूं, तो ये डिफरेंस हो गया। क्यों, यहाँ पर डॉलर पहले $3 आ गए, यहाँ पर कितने डॉलर आए, 2 ही डॉलर आए अब तक, तो ये डिफरेंट हो गई की वैल्यूज, right? So this is why we are using dollar, right? This is why we are using dollar. For time complexity, let's look at the time complexity of this code, how it is actually optimizing, a little bit optimized. Let's see, we are not using sorting here, और ये end time चल रहा है, right? Previous वाले कैसे भी end time चल रहा है, so इसकी हो गई big O of n, इसकी भी हो गई big O of n, but अंदर की कितनी है,
अंदर की कितनी है देख लेते हैं, अंदर की कितनी है। अब ये स्ट्रिंग फंक्शन कॉल हो रहा है, इसकी तो कोई है नहीं ना, इसकी बहुत ज़्यादा सुपर वर्स्ट केस में अगर कोलिशंस होता है टेबल में तब जाके आती है आपकी क्या बिग ऑफ एन। बट अभी तो ऐसा केस नहीं है, वी आर कंसीडरिंग कि भाई कोलिशंस नहीं हो रहे और पुश बैक मैप में बिग ऑफ वन में ही हो जा रहा है। सो ये तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले नहीं रहा। इस अब ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं यहाँ, तो फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग पर्टिकुलर, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर पास कर रहे हैं, you passing it here और तब उसके corresponding key generate कर रहे हैं, then you're pushing it the string into the map using that key, right, using that key. So ये n times m times हो रहा है और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक वेक्टर बनाया हमने कांस्टेंट साइज का विच इज 26, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो स्पेस की, बट यहाँ पर आइटरेट हो रहा है लूप m टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आइटरेट होगी, काउंट एरे पूरी काउंट एरे 26 टाइम्स विच इज कांस्टेंट, बट दिस इज वेरिएबल, राइट। सो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल m बिग ऑफ m कंज्यूम करेगा, which means अगर ये पूरा फंक्शन क्रिएट की m टाइम्स m कंज्यूम कर रहा है एंड दिस वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन n टाइम्स, सो दिस ओवरऑल फॉर लूप वुड गिव अस n क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, right, n cross m time complexity. So this was the thing that I meant to show you the difference, like this is the exceptional case, right. So this was all for today, and if you have any doubt related to any approach or you have a better approach than this, please do try the problem. Don't blame me कि भाई ऐसे मत कहना कि भाई आपने तो ये solution कराया है, and मैं बता रहा हूँ if there exists an optimized solution and I'm not aware of that, you should find it and try it, right. और brute force से जब तक try नहीं करेंगे you won't get the answer, right. भाई ऑप्टिमाइज से पहले ब्रूट फोर्स ही आया ना, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी आया, वो नहीं पता, बट ऑप्टिमाइज से पहले तो ब्रूट फोर्स ही आएगा ना, देन यू विल ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स, दैट्स व्हाट वी हैव डन। और मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया कि भाई हमारा जो लॉजिक बनाया था उसको ऑप्टिमाइज कैसे करा, क्यों ऑप्टिमाइज करा, कहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा हो रही थी। So that's all for today. Do try this problem. I'll paste the link in description. Do try this problem. All the best. कोड करते रहिए, कोड मत छोड़िए, and thank you. That's all.